کراچی کی زمین پر خاموش جنگ جاری ہے۔ رات کی تاریکی میں قبضے، دن کی روشنی میں اربوں کی کالونیاں۔ کیا سب کچھ جعلی ہے؟ اصل حقیقت کیا ہے؟ 4 ارب کی زمین کس کی؟ سچ سامنے آ رہا ہے۔ یہ صرف ہاؤسنگ اسکیم نہیں، کہانی کچھ اور ہے۔ سچ جانیے اس خصوصی رپورٹ میں۔ ڈسکلیمر: یہ ویڈیو 11 فروری 2026 کی ڈان نیوز رپورٹ پر مبنی ہے۔ خبر اور دستاویزات اصل ڈان نیوز سے ماخوذ ہیں۔ اصل لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ویڈیو کے مناظر صرف ناظرین کی دلچسپی کے لیے AI کے ذریعے تیار کیے گئے ہیں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی طرف سے جاری کردہ NTR فیز 2 میں پلاٹوں کی فروخت اور اشتہار کے لیے ایک NOC کے مطابق پروجیکٹ کی پیمائش 30 ایکڑ اراضی بیرنگ سروے نمبر 363 سے 367 دہ حلقانی میں نا کلاس نمبر 294 میں سے ہے۔ 2013 میں سپریم کورٹ میں جمع کرائے گئے BOR کے نقشے میں واضح طور پر اس پورے علاقے کو دکھایا گیا ہے، جو جزوی طور پر دہ حلقانی اور جزوی طور پر دہ بند مراد میں آتا ہے، بطور نا کلاس یا غیر سروے شدہ یا ریاستی زمین۔ لارمس کی ویب سائٹ اس وقت دہ حلقانی میں بھی یہی صورتحال دکھاتی ہے۔ دہ بند مراد کا نقشہ غائب ہے۔ ڈان کو ان سوالات کا کوئی جواب نہیں ملا جو اس نے GFS کے CEO کو تحریری طور پر بھیجا تھا۔ ڈان نے چیف سیکرٹری سندھ، DC ویسٹ، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، ممبر لینڈ یوٹیلائزیشن BOR اور پروجیکٹ ڈائریکٹر لارمس سے بار بار رابطہ کیا تاکہ مذکورہ ہاؤسنگ پروجیکٹس کے حوالے سے سروے نمبروں کے بارے میں معلومات حاصل ہوں، مگر ان کی جانب سے سوائے لارمس کے کسی نے جواب نہیں دیا۔ حفیظ اللہ عباسی اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے بتایا کہ لارمس کے پاس زیر بحث ڈیٹا نہیں ہے۔ ہم صرف وہی ڈیٹا ڈیجیٹائز کر سکتے ہیں جو ہمیں فراہم کیا گیا ہے۔ یہ مثال محض ایک منصوبے کی نہیں بلکہ ایک وسیع تر رجحان کی نشاندہی کرتی ہے، جہاں مضافاتی کراچی میں تیزی سے پھیلتی ہاؤسنگ اسکیمیں قانونی ملکیت، لیز کے اختیارات اور ریاستی نگرانی کے بنیادی سوالات کو جنم دے رہی ہیں۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ مذکورہ نا کلاس نمبر 294، جس کے بارے میں GFS کے نمائندوں نے دعویٰ کیا کہ اس سے ان کے منصوبے نارتھ ٹاؤن ریزیڈنسی فیز 2 کے لیے سروے نمبر 363 سے 367 تک اراضی نکالی گئی کے حوالے سے نیب میں باقاعدہ شکایت دائر کی گئی۔ شکایت میں موقف اختیار کیا گیا کہ زمین کے وسیع رقبے غیر قانونی طور پر قبضے میں لے کر فروخت کیے گئے۔ اس کے ساتھ ایک تفصیلی فہرست بھی منسلک تھی جس میں متعلقہ سروے، نا کلاس نمبرز، رقبہ، قیمت اور مبینہ فروخت کنندگان و خریداروں کے نام درج تھے۔ فہرست کے مطابق NA کلاس نمبر 284 سے 294 پر مشتمل 82 ایکڑ اراضی مبینہ طور پر غیر قانونی طور پر GFS کو فروخت یا الاٹ کی گئی۔ مجموعی طور پر شکایت میں تقریباً 1500 ایکڑ اراضی کا ذکر تھا، جس میں 1150 ایکڑ سرکاری زمین شامل بتائی گئی۔ 11 اکتوبر 2023 کو نیب نے ڈپٹی کمشنر ویسٹ کو خط لکھ کر سرکاری زمین کی غیر قانونی فروخت الاٹمنٹ سے متعلق شکایت سے آگاہ کیا اور 23 اکتوبر تک جامع رپورٹ طلب کی۔ تاہم اس شکایت پر نیب سے باضابطہ موقف لینے کی کوششیں نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکیں۔ ذرائع کے مطابق نیب نے ابتدائی انکوائری شروع کی تھی، مگر بعد ازاں ریونیو، لوکل گورنمنٹ اور فوڈ محکموں سے متعلق 166 کیسز، انکوائریاں اور شکایات سندھ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو منتقل کر دی گئیں۔ نیب کو دی گئی شکایت کے ساتھ منسلک فہرست میں یہ واضح ہوتا ہے کہ کس طرح مبینہ طور پر ایک منظم نیٹ ورک نے گورننس کے ڈھانچے کو کمزور کیا۔ زمین حاصل کرنے والوں میں معروف بلڈرز اور ڈیولپرز کے نام شامل تھے، جبکہ فروخت کنندگان میں علی حسن بروہی، ایک SHO اور ایک مختار کار کا نام درج تھا۔ پولیس افسر غلام حسین کورائی، اس وقت کے SHO منگھو پیر پر الزام تھا کہ انہوں نے یوسف بروہی کے ساتھ مل کر دیہ بند مراد میں 200 ایکڑ سرکاری زمین پر قبضہ کیا، جس کی مالیت دستاویز کے مطابق 4 ارب روپے بتائی گئی۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ ایک SHO عموماً گریڈ 14 یا 16 کا افسر ہوتا ہے، جس کی زیادہ سے زیادہ ماہانہ تنخواہ تقریباً 1,20,000 روپے ہے۔ ایک ایسا تضاد جو الزامات کی سنگینی کو مزید نمایاں کرتا ہے۔ دسمبر 2024 میں تاجروں کی جانب سے زمینوں پر کھلے عام قبضوں کی شکایات کے بعد حکومت سندھ پر دباؤ بڑھا۔ انسپکٹر کورائی ان 5 پولیس افسران میں شامل تھے جنہیں بعد میں ہیڈ کوارٹر میں ڈیسک جاب پر منتقل کیا گیا۔
ज़राए का कहना है कि बाज़ रेवेन्यू अफसरान के तबादले भी हुए, मगर अक्सर की जगह ऐसे अफराद आए जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके सूबाई क़यादत से करीबी रवाबित हैं। डॉन के सवालात के जवाब में इंस्पेक्टर कोराई ने इल्ज़ामात को झूठा, मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने आबाद यानी एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का एक ख़त भी पेश किया, जिसमें कहा गया था कि शिकायत कुनिंदा नागुज़ीर हालात के बायस अपनी शिकायत वापस लेना चाहते हैं। इन नागुज़ीर हालात की नौयत की आज़ादाना तस्दीक मुमकिन ना हो सकी। ज़राए के मुताबिक कोराई इस वक्त बग़ैर किसी मुस्तकिल पोस्टिंग के हैं और माजी में उन्हें महकमाना सज़ाएँ भी मिल चुकी हैं। इसी फहरिस्त में एक मुख्तियार कार यानी मुबैना तौर पर एजाजुल हसन खान का जिक्र भी था, जिन पर स्कीम 33 में 7 एकड़ ज़मीन धोखादही से एक बिल्डर को मुंतकिल करने का इल्ज़ाम था। इत्तिफाकन वो उन 11 मुख्तियार कारों में शामिल थे जिन्हें 2023 में ज़मीन फ्रॉड के इल्ज़ामात पर मुअत्तल किया गया। सितम ज़रीफ़ी ये है कि जहां बाअसर अफराद और मुबैना तौर पर बदउनवान अहलकारों की मिली भगत से सरकारी ज़मीन निजी हाथों में मुंतकिल हो रही है, वहीं कम आमदनी वालों के लिए सरकारी हाउसिंग स्कीमें दहाइयों से ताअत्तुल का शिकार हैं। हॉक्स बे स्कीम 42 इसकी वाज़ेह मिसाल है। 1984 में केडीए ने इसे कम व मुतवस्सित तबके के लिए शुरू किया और 1996 में एलडीए के सुपुर्द कर दिया। 4 दहाइयों बाद भी इसका बड़ा हिस्सा गैर तरक्की याफ्ता है। न बुनियादी ढांचा मुकम्मल, न बिजली व पानी की फराहमी। बहुत से असल अलाटी अपनी ज़िंदगी में प्लॉट का कब्ज़ा हासिल न कर सके। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मुख्तस ब्लॉक भी अमली पेशरफ्त से महरूम है। ज़राए के मुताबिक बाअसर अनासिर ने मुतअद्दिद बार इसके गिर्द बाउंड्री वॉल तामीर करके दावा जताने की कोशिश की। हुक्काम जब भी दीवार गिराते हैं, कुछ अरसे बाद वो दोबारा खड़ी हो जाती है। इसी इलाके से गुजरने वाली स्पार्को रोड के साथ आशिकाने मुस्तफ़ा के नाम से एक गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी भी वजूद में आ चुकी है। कहा जाता है कि एक एमपीए के 2 फ्रंटमैन इसके मामलात देखते हैं। जब डॉन की तहकीकाती टीम दौरा करती है तो एक आदमी टहलता हुआ आता है और पूछता है कि क्या आप किसी प्लॉट में दिलचस्पी रखते हैं, और अगर है तो अपने सवालात करीबी मदीना रियल एस्टेट में ले जाएं। यहाँ 100 या 120 मुरब्बा गज के प्लॉट फरोख्त के लिए दस्तयाब हैं। रियल्टर का कहना है कि मेन रोड के साथ 400 मुरब्बा गज के कमर्शियल प्लॉट की कीमत 3 महीने के अंदर नकद अदायगी के साथ 65 लाख रुपए है। जब इनसे पूछा गया कि क्या सोसाइटी के पास डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा लीज है, तो वो जवाब देते हैं कि नहीं, ये लीज पर नहीं बल्कि ये गोठ आबाद स्कीम का हिस्सा है, इसलिए अगर आप यहाँ खरीदेंगे तो आपको सनद मिलेगी। इसका मतलब है कि हुकूमत ने सरकारी ज़मीन के इस टुकड़े को यहाँ वाक़े गोठ के लिए मुख्तस किया था। जाहिर है इस मामले में कचीलू गोठ की सनदें सिर्फ गोठ के असल बाशिंदों को जारी की जा सकती हैं। इत्तिफाक से कचीलू गोठ दरअसल तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। पेशन गोई के मुताबिक गोठ आबाद स्कीम 1987 में शुरू होने के बाद से बदउनवानी की एक ऐसी गाड़ी बन चुकी है, जबकि इस स्कीम का मकसद देही सिंध में मुस्तहिक मकामी आबादी को रिहाइश फराहम करना था। गोठ आबाद के अहलकारों ने जाली सनदें, हत्ता के एक फ़र्द को एक से ज़्यादा सनदें जारी करना शुरू कर दी ताकि मौखर ज़िक्र को एक बड़े इलाके पर हक का दावा करने के काबिल बनाया जा सके। आशिकाने मुस्तफ़ा हाउसिंग सोसाइटी के साइट ऑफिस में मोहम्मद शाहनवाज ने हकीकत में दावा किया कि बाइयार को पिछली तारीखों पर सनद दी जाएंगी, क्योंकि 2012 के बाद सनद जारी होना बंद हो गए थे। आशिकाने मुस्तफ़ा के मालिकान से तहरीर में पूछे गए सवालात का डॉन को कोई जवाब नहीं मिला। जून 2014 में कराची अमन केस की सुप्रीम कोर्ट की समाअत के दौरान BOR ने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें कहा गया कि 59,803 एकड़ सरकारी अराजी पर कब्जा है। दरे पर्दा ज़मीन के सौदे महज बेज़ाब्तगियाँ नहीं हैं, ये अवामी एतमाद की बुनियादी खिलाफ वर्जी है। रियासती अराजी हुकूमत के लिए नहीं है कि वो जिसे चाहे अता करे। यही वजह है कि सिंध हाई कोर्ट के एक हालिया फैसले में इस बात पर जोर दिया गया है कि शफ़ाफियत के मफाद में रियासती ज़मीन को खुली नीलामी के ज़रिए निपटाना चाहिए। जाली NOC और धुआं और आईना। मौजूदा तहकीकाती रिपोर्ट के लिए जिन हाउसिंग सोसाइटियों की छानबीन की गई वो LDA के तहत आती हैं। अहमद सईद, जो LDA के मामलात से बखूबी वाकिफ़ हैं, इंकिशाफ करते हैं कि अथॉरिटी ने मुतअद्दिद मौक़े पर ना क्लास ज़मीन यानी गैर सर्वे शुदा ज़मीन जो किसी को अलॉट नहीं की जा सकती और जिस पर कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया जा सकता को सर्वे शुदा ज़मीन दिखाया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू समेत मुताल्लिका इदारे इस फ्रॉड से मुंसलिक हैं। उनके मुताबिक तरीक़ेकार कुछ यूँ है कि कब्ज़ा करने वाली फ़रीक DG LDA को लेआउट प्लान की मंजूरी के लिए अर्जी देता है। DG मुताल्लिका डिप्टी कमिश्नर से ज़मीन की हैसियत मालूम करता है, जो मामला मुख्तियार कार को भेज देता है।
मुख्तियार कार की रिपोर्ट वापस डिप्टी कमिश्नर और फिर डीजी को भेज दी जाती है, जिसमें जमीन अर्जी गुजार की मलकियत जाहिर की जाती है। लेआउट प्लान की सरकारी फीस तकरीबन 13 लाख रुपए फी एकड़ है, जबकि ना क्लास जमीन को सर्वे शुदा जाहिर करने की मुबैना रिश्वत तकरीबन 5 लाख रुपए फी एकड़ है। सईद कहते हैं क्योंकि खतूत बाकायदा डायरी में इंदराज किए बगैर हाथों हाथ भेजे जाते हैं, इसलिए कोई कागजी सुराग नहीं रहता। एलडीए कहेगा कि उसने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तस्दीक पर अमल किया और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहेगा कि ये सरकारी जमीन है और उसने कोई मंजूरी नहीं दी। ये क्लासिक धुआं और आईने का खेल है। ये तमाम मिसालें एक ऐसे निज़ाम की तस्वीर पेश करती हैं जहां सरकारी जमीन जो अवामी अमानत है, ताकत, असर और रसूख और मुबैना माली मफादात के गिर्द घूमते जाल में फंसती दिखाई देती है, जबकि आम जनता के लिए छत का ख्वाब मुस्तकिल दूर रहता है। डीजी एलडीए सफदर बघियो अपने दफ्तर में कुछ मुस्तरिब दिखाई देते हैं। वो डॉन के सामने मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि ज़मीन की मलकियत की तस्दीक उनके दायरा इख्तियार में नहीं आती। हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट मुताल्लिका डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के जरिए मलकियत की तस्दीक करता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चेक करता है कि बिल्डर के पास टाइटल है या नहीं। जब मलकियत तस्दीक हो जाती है तो हम सिर्फ तकनीकी जांच करके लेआउट प्लान के लिए एनओसी जारी करते हैं। एलडीए के सरबराह प्लानिंग मोहम्मद अरबाब भी इसी मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। हमारा मैंडेट कराची बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग रूल्स तक महदूद है। हम टाउन प्लानिंग एजेंसी हैं। जमीन की शनाख्त, सर्वे नंबर्स और टाइटल की तस्दीक डिप्टी कमिश्नर के पास होती है। ताहम जब उनसे गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के बारे में पूछा गया तो मिस्टर बघियो ने तस्लीम किया कि ऐसी स्कीमें मौजूद हैं। इन्हें रोकना भी हमारी जिम्मेदारी है। हम कार्रवाई करते हैं, मगर बाज़ाब्ता तौर पर हम उन्हीं से डील करते हैं जो एनओसी के लिए अर्जी देते हैं। बहरहाल जल्द ही हम एक प्रोग्राम शुरू करेंगे जिसमें इनके खिलाफ बराह रास्त इक़दामात किए जाएंगे। मजीद दबाव डालने पर मिस्टर अरबाब का कहना था, कब्जे वही लोग करते हैं जिनके सरकारी रवाबित होते हैं, न क्लास जमीन पर हाथ डालने वाले आम लोग नहीं होते। अगरचे बाज सरकारी अफसरान अपनी जिम्मेदारी दयानतदारी से अदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब कोई मुख्तियार कार किसी मशकूक कब्जे पर नोटिस जारी करता है तो मुल्जिम अक्सर इंतजामी ट्रिब्यूनल से रुजू कर लेता है। सिंध पब्लिक प्रॉपर्टी रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट एक्ट 2010 के तहत कायम ये ट्रिब्यूनल्स, जिनकी सरबराही रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या कम अज कम 10 साल तजर्बा रखने वाले वकील करते हैं, फरीकैन के हुकूक का तायन करने के मजाज है। मगर मुताद्दिद ज़राए से ये पता चला है कि कराची के वाहिद इंतजामी ट्रिब्यूनल से कई मुतनाज़ा फैसले सामने आए। इल्ज़ाम है कि बाज़ कब्ज़ा ग्रोह जाली या मशकूक दस्तावेज़ात के साथ अदालत पहुँचते हैं, फौरी स्टे ऑर्डर हासिल करते हैं और यूँ अपनी पोजीशन मजबूत कर लेते हैं। एक सीनियर ब्यूरोक्रेट उमैर रफ़ीक नाम करते हैं कि ये आसान है, अदालत के रीडर से मिलें, जल्दी से दरख्वास्त दायर करें और स्टे ले लें। इसके बाद अगर कोई ज़मीन का दौरा करे तो तौहीन अदालत का खतरा होता है। इस सब की कीमत 10 लाख से 20 लाख रुपए है। डॉन के पास सूट नंबर 15/2024 के उबूरी हुक्म की कॉपी मौजूद है, जो 23 जुलाई 2024 को उस वक्त के प्रिसाइडिंग ऑफिसर मुनीर भुट्टो ने जारी किया। मुद्दई अल्फैज बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड थे, जबकि मुद्दा अलहिंद में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, SBCA, LDA और इंतजामी तजावुज़ पुलिस वगैरह शामिल थे। उबूरी हुक्म में 32 एकड़ अराजी यानी ना क्लास नंबर 42 देह मीटान तप्पू गंगूपीर जिला गरबी से मुद्दई को बेदखल करने से रोका गया। दिलचस्प बात यह है कि वही प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो अब कराची वाटर एंड सीवरेज ट्रिब्यूनल के सरबराह हैं, इस साल के शुरू में की गई शिकायत का मरकज थे। 30 जनवरी 2024 के एक खत में, जिसकी एक कॉपी डॉन के पास मौजूद है, DC ईस्ट ने सिंध हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार मेंबर इंस्पेक्शन टीम डोम यानी एक इदारा जो जिला और निचली अदालतों में जुडिशियल अफसरान के खिलाफ शिकायत के मामलात देखता है, को मिस्टर भुट्टो के खिलाफ एक शिकायत पर मजीद कार्रवाई की दरख्वास्त बतवसत असिस्टेंट कमिश्नर शर्की ने उन्हें भेजी थी। अपने खत के साथ उन्होंने कराची शर्की के एक मुख्तियार कार मोहम्मद इरफान लाशारी की पेश करदा रिपोर्ट मुंसलिक की। जनाब लाशारी ने अपनी शिकायत में इल्ज़ाम लगाया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने फतेह मोहम्मद गुबोल गोठ में 500 मुरब्बा गज सरकारी अराजी पर कब्जा करने वालों को स्टे दिया था। कराची की ज़मीन की इस कहानी में अभी सबसे बड़े राज बाकी हैं। अगले पार्ट में हम बताएंगे कि इस पूरे लैंड माफिया के पीछे असल ताकतवर लोग कौन हैं।